નમસ્કાર બાળ મિત્રો, જય હિન્દ. આજે આપણે ભણીશું ચેપ્ટર 3 સચ્ચા હીરા. તેમાં આપણે શું ભણી ચૂક્યા તો કે આપણે કહાની ભણી ગયા. ત્યાર પછી આપણે શું ભણતા હતા? શબ્દાર્થ ભણી ચૂક્યા, મુહાવરે. હવે આપણે ભણીશું અભ્યાસ. અભ્યાસની અંદર પણ આપણે શું ભણી ગયા તો કે એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે આપણે પૂરો કર્યો. હવે આપણે ભણવાનું બાકી છે પ્રશ્ન નંબર 2. जो प्रश्न नंबर 2 ની અંદર તમે ध्यान આપો, એમાં निम्नलिखित शब्दों के बारे में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए. જો એમાં શું કીધું, આપણને ઘણા બધા શબ્દો આપેલા છે, તેની અંદર શું કીધું છે? તુરંત આને વાલે શબ્દો કે બાદ. જે આપણને શબ્દ આપેલો છે તે શબ્દકોશની અંદર, એટલે કે આપણી ડિક્શનરી છે કે શબ્દકોશની અંદર તેના પછી કયો શબ્દ આવે છે તે લખવાનો છે, અને એ શબ્દનો અર્થ પણ આપણે શું કરવાનો છે? લખવાનો છે. તો આપણે પહેલો શબ્દ જોઈએ બાળકો, કયો છે તો કે બપોતી. બપોતીનો અર્થ શું થાય? એના પછી કયો શબ્દ આવે છે તો કે બપ્પા. કયો શબ્દ આવશે? બપ્પા. બપ્પાનો અર્થ શું થાય? પિતા. શું થશે? પિતા. ત્યાર પછી બીજો જોઈએ તો એ શું છે? વ્યથા. તો કે વ્યથા પછી કયો શબ્દ આવશે શબ્દકોશની અંદર તો કે વ્યથાતુર. વ્યથાતુરનો અર્થ શું થશે તો કે પીડિત. વ્યથાતુર એટલે પીડિત. ત્યાર પછી શું આવશે? ત્રીજો શબ્દ છે નિયતિ. નિયતિ પછી શબ્દકોશની અંદર કયો શબ્દ આવે તો કે નિયતેન્દ્રિય. નિયતેન્દ્રિયનો અર્થ શું થાય તો કે જીતેન્દ્રિય. જીતેન્દ્રિય એટલે શું થાય તો કે તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિયોને જીતનાર, એટલે કે ઇન્દ્રિયોને જીતનારને શું કહેવાય? જીતેન્દ્રિય. ચોથો શબ્દ જોઈએ પ્રતિભા. પ્રતિભાનો એના પછી કયો શબ્દ આવે તો કે પ્રતિભાગ. પ્રતિભાગનો અર્થ શું થાય? ઉત્પાદન કર. પછી પાંચમો છે શૌર્ય. શૌર્ય પછી કયો શબ્દ આવે તો કે શોલ્વ. શોલ્વનો શું અર્થ થાય તો કે શુલ્ક સંબંધી. પછી છઠ્ઠો શબ્દ છે રુચિ. રુચિ પછી શું આવશે તો કે એના પછી શબ્દ આવે છે રુચિત. રુચિતનો અર્થ થાય છે મનચાહા. મનચાહાનો અર્થ શું થાય? મતલબ કે મનને આપણને ગમતું, એટલે કે ઈચ્છા પ્રમાણે. મનચાહાનો અર્થ એવો થાય છે. ત્યાર પછી આવશે બાટના. બાટના પછી કયો શબ્દ આવે શબ્દકોશમાં તો કે બાટા. બાટા એટલે કે હિસ્સા, એટલે વહેંચવું. આઠમો છે ક્ષમા. ક્ષમા એટલે એનો પછી શબ્દ કયો આવશે શબ્દકોશમાં તો કે ક્ષમાલુ. ક્ષમાલુ યાની કે ક્ષમા કરને વાલા. એનો અર્થ કેવો થાય ક્ષમાલુનો તો કે ક્ષમા કરને વાલા. નવમો ઉદ્યાન. ઉદ્યાનનો અર્થ શું? એના પછી કયો શબ્દ આવશે તો કે ઉદ્યાનિકી. ઉદ્યાનિકીનો અર્થ શું થાય તો કે બાગ બગીચે લગાને કા કામ, એટલે કે બાગ બગીચા જે લગાવતો હોય તેને શું કહેવાય? ઉદ્યાનિકી કહી શકાય. પછી 10મો શબ્દ અમન. અમન એના પછી શબ્દ કયો આવશે તો કે અમનસ્ક, એટલે કે અનમના. એનો અર્થ શું થાય? અનમના. જો બાળકો આપણે આ શબ્દો ભણ્યા, ત્યાર પછી ભણીશું પ્રશ્ન નંબર 3. શું ભણીશું? પ્રશ્ન નંબર 3. તેમાં શું કહેલું છે તમને? જો બાળકો કે કહાની की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए. એટલે કહાનીને આપણે શું કરવાનું છે? ચર્ચા પહેલા કરવાની છે. કે આમાં જો કહાની શું આપેલી છે આપણે જોઈએ એના મુદ્દાઓ. राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा को कुर्ता खोजने जाना, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को ढूंढना देखना, सुख का राज समझना. એ આપણને શું આપેલા છે? મુદ્દાઓ આપેલા છે. તેના વિશે આપણે શું કરવાની છે? ચર્ચા કરવાની છે. તો એમાં શું છે તો કે
छात्रों विद्यार्थीओ अने शिक्षक विषे चर्चा। तो ये केवी रीते थई शके? जो शिक्षक छे एवो प्रश्न करी शके। शुं? तो कि राजा बीमार क्यों पड़ा एवो प्रश्न थाय कि राजा से बीमार केवी रीते पड्यो। पछी छात्र जवाब आपे छे शुं? क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था। तो कि शिक्षक वैद्य राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका? दूसरा छात्र क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण न जान सका। शिक्षक किसान क्यों सुखी था? तीसरा छात्र किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसलिए वह स्वस्थ और सुखी था। त्यार पछी एनुं आपणे शुं आपवानुं छे? टाइटल, एटले के एने आपणे शीर्षक आपवानुं होय छे। तो बाळको एने शीर्षक शुं आपशुं आपणे? कहानी, कोई पण कहानी लखो ने एमां शीर्षक महत्वनुं होय छे। शीर्षक छे ए महत्वनुं। शीर्षक अने सीख ए बंने शुं होय छे? महत्वना होय छे। तो एनुं शीर्षक शुं आपीशुं आपणे? तो के सुख का रहस्य अथवा तो बीमारी का इलाज, एवुं आपणे शीर्षक आपी शकाय। जोईए हवे आपणे कहानी छे पूर्ण करवानी छे। कहानी छे शुं करवानुं छे? पूर्ण करवानी छे। तो जोईए चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की હવે પેરેગ્રાફ પાડજો। ત્યાર પછી राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। त्यार पछी आगळ जोईए पेरेग्राफ पाड़ीने। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। पेरेग्राफ पाड़ीने लखजो। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुंचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। आगळ पेरेग्राफ पाड़ीने लखजो। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। हवे आपणे शुं लखशुं? सीख। आमांथी कहानीनी अंदर आपणने सीख शुं, बोध शुं प्राप्त थाय छे ते सीख। श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। जो बाळको आ कहानी आपणे पूर्ण करी। हवे जोईशुं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 नी अंदर शुं आपेलुं छे? जो बाळको प्रश्न नंबर 4 जोईए। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। जो शुं कीधुं छे? तमने कहानी आपेली छे पण ए पण केवी छे? तो के अधूरी। तेने आपणे शुं करवानी छे? मौखिक अथवा लिखित पूरी करवानी छे। जोईए अधूरी कहानी शुं छे? पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनके परीक्षा लेने के लिए आए।
परीक्षा लेने के लिए आए। उसने एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसके हाथ में क्या था? तो कि एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। दरबारी ने प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर तक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। તો આપણને શું આપેલું છે? તો કે કહાની અધૂરી આપેલી છે। હવે એને આપણે શું કરવાની છે? પૂર્ણ કરવાની છે। તો આગળ જોઈએ પૂર્ણ કરતા। उसने कहा, આગળ જોઈએ, उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। ત્યાર પછી જોઈએ, उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन 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 करती हुई मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी है वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। उससे कनकपुर के दरबारी की ख्याति और भी बढ़ गई। હવે જોઈશું આપણે આ કહાની પૂર્ણ કરી। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 5। તેમાં શું કહેલું છે દીકરાઓ? જો નિમ્નલિખિત કહાની કા સારાંશ लिखिए। તે તમને કહાની આપેલી છે તેમાંથી તમને પૂર્ણ કહાની આપેલી છે આખી, એમાંથી તમારે સારાંશ એટલે કે શું સારાંશ નીકળે છે એ લખવાનો છે। જોઈએ આપણે કહાની પહેલા વાંચીશું। जो नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर सोच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज सुनकर उड़ गया। उसकी आवाज सुनकर उड़ गया। હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે એનો સારાંશ શું છે એ લખવાનો છે। તો જો બાળકો એનો સારાંશમાં લખો। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में सोच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि
इससे पहले ही राजहंस उड़ गया, राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी ही रह गई। આટલો એનો શું લખવાનો હોય છે? તમારે સારાંશ લખવાનો હોય છે। જો બાળકો, અહીંયા આપણો અભ્યાસ છે પૂર્ણ થાય છે। હવે આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય।